और भारत में निर्माण की ये प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है और इसीलिए आज का ये फ्लीट रिव्यू इतिहास में दर्ज होता जा रहा है। और अब आपके सामने आईएनएस शक्ति। INS Shakti, pennant number Alpha 57, viewers. This is a fleet replenishment tanker. Very, very important. Fleet replenishment tanker and a fleet support ship. Shakti, INS Shakti on your screens is the second of the two Deepak class replenishment tankers with a double hull configuration. Now, the multi-role ship INS Shakti can supply fuel, ammunition, spares and provisions to the ships at sea, naturally extending their reach and sustenance. INS Shakti on your screens, viewers, is commanded by Captain Sachin Vijay Shinde. नौसेना की शक्ति में इजाफा करता हुआ आईएनएस शक्ति प्रेसिडेंट जॉर्ज उसके सामने से गुजरता हुआ बहुभूमिका वाला पोत है ये, जो समुद्र में पोतों को ईंधन, उसके अलावा गोला बारूद, कल पुर्जे और अन्य चीजों की आपूर्ति करता है, जिससे अन्य पोत समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकते हैं। और आईएनएस शक्ति के कमान अधिकारी थे कैप्टन सचिन विजय शिंदे। किसी भी जहाज के पोत के कप्तान के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है जब सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उसके सामने से गुजर रहे हैं और वो उन्हें 3 जय के साथ अपना अभिवादन कर रहे हैं। और अब बारी है सर्च एंड रेस्क्यू डेमो ऑपरेशंस की, जहां पर देश के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट जंप का प्रदर्शन करेंगे, राहत और बचाव कार्यों का अवलोकन करेंगे प्रेसिडेंट यॉट पर मौजूद माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे जहाज न केवल जंग में सबसे आगे रहते हैं, बल्कि आपदा और राहत कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सर्च एंड रेस्क्यू डेमो एक और आयाम नौसेना में जुड़ता हुआ, जो ये दिखाता है कि कैसे बचाव कार्यों में, राहत कार्यों में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के मनूवर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के द्वारा, रेस्क्यू ड्राइवर्स होंगे, कॉम्बैट जंप्स होंगे। और इसमें इस मैन्यूवर को तकनीकी तौर पे कहें तो 10-10 टेक्निक्स कहा जाता है, जहां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जल स्तर से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसमें बचाव गोताखोरों को शत्रु क्षेत्रों में भी तेजी से तैनात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति जो समंदर की गहराइयों में है, जो खतरे का संकेत भेजता है। ये जो आप नारंगी रंग की जो आप धुआं देख रहे हैं, ये संकेत है कि यहां पे वो व्यक्ति है जिसका बचाव करना है। और उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेगा और अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित पानी से उसे निकालेगा। That's right, OP, and this particular maneuvering demands extreme skills, needless to say. The visuals speak for themselves, Shivendra. As the aircraft, you can see, is flying only 10 feet above water levels at a very low speed, wherein 2 daring rescue divers will dive from the aircraft and into the water. Now, this helicopter will carry out a short circuit and then return to drop area and demonstrate a quick rescue using the rescue basket. That is the rescue basket right on your screens. The basket allows even an untrained sailor to climb easily. We must tell our viewers that what you're watching right now or witnessing is the combat jumps from the advanced light helicopter. Aircraft carrying out a special maneuvering act called 10-10 method of deploying rescue divers. The basket allows even an untrained survivor to climb easily. And Shivendra, imagine being stuck in flood, as I also get in our fellow commentator, Captain Sham Kumar. In a situation, Captain Kumar, flood with water levels swelling all around you, this is how the civilians could be saved and are saved. Yes, Sakal, this is very, very the guardians critical, here are our sailors. Yes. Very, very critical for the naval operations. Nostalgic moment for me as on now, as the search and rescue demonstration is in progress. Fleet Air Arm. The helicopters are composite part of the Fleet Air Arm, and the naval aviation, the third dimension
of the Indian Navy is displaying its operational capability through search and rescue operations. This is available mainly for searching a survivor at sea, because as you realized, the smoke, orange smoke, was actually giving the indication of the survivor's presence, because searching at sea is a very difficult task, and demonstration of rescuing through basket allows the survivor to be safe, and anybody, a civilian also, could be safely lifted. और हम तुरंत अभी हम गवाह बने कि किस तरह से जो सर्वाइवर या जो उत्तरजीवी है उसे किस तरह से बचाया गया, और ये बेहद मुश्किल टास्क होता है, और इसकी भूमिका या कहें प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो परिस्थितियां बदल रही हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं, और ऐसे में इस तरह की ऑपरेशंस और उसमें सटीकता, प्रवीणता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमने उसी बात के अभी हम गवाह बने कि किस तरह से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने सर्वाइवर्स को आसानी से बचा लिया, और इस पूरे ऑपरेशन में इस बात की खासकर ध्यान रखा जाता है कि कैसे जो अप्रशिक्षित जो सर्वाइवर है, यानी जिसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, कोई आम सिविलियन है, वो भी इसका गवाह बन सके, उसका लाभ प्राप्त कर सके। INS Vishakhapatnam, third leg, first ship. First ship of the fourth column with pennant number Delta 66 is INS Vishakhapatnam. A stellar example, viewers, of India's indigenous shipbuilding prowess. It is the latest destroyer to be commissioned into Indian Navy. It also houses state-of-the-art naval armament and sensors. INS Vishakhapatnam on your screens. INS Vishakhapatnam is commanded by Captain Birendra Singh Bains, Vishisht Seva Medal, and he is also the flagship of the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, ADC. प्रेसिडेंट यॉट हम सुन सकते हैं सामने से गुजर रहा है। आईएनएस विशाखापट्टनम के 3 जय का उद्घोष करते हुए कैडेट्स डेक पर जहाज के मौजूद भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक नौसेना आयुध और सेंसर्स में शामिल होने वाला ये नवीनतम डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसके कमान अधिकारी हैं कैप्टन वीरेंद्र सिंह बैस, और ये नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार एडीसी का ध्वजपोत है। तो बहुत ही गौरवमयी अवसर किसी भी नौसेना के अधिकारी के लिए, किसी भी सेलर के लिए, किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपरा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और हम इस समय देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं पीरियोडिक इंटरवल पर परंपरागत तौर पर हम जो हेलीकॉप्टर से शॉट हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट के सामने आईएनएस चेन्नई, जो कि कोलकाता श्रेणी का डिस्ट्रॉयर है और स्वदेशी रूप से मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे बनाया गया है। आत्मनिर्भरता का सुंदर प्रतीक भारतीय नौसेना पोत चेन्नई के कमान अधिकारी कैप्टन अमित कुमार सिंह, और आज ये वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीएसएम पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वजपोत है। INS Chennai, another stellar example of Atmanirbhar Bharat in defense sector. Second ship of the column, INS Chennai, right on your screen, pennant number Delta 65. The third ship of Kolkata class destroyers. INS Chennai, indigenously built at Mazgaon Dockyard in Mumbai. This ship showcases the Atmanirbharta of Indian Navy. 3 Jays resounding. We can make out from these visuals and also here the 3J. And INS Chennai is commanded by Captain Sandeep Singh Randhawa, and today he is also the flagship of the Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Ajendra Bahadur Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, and VSM. बंगाल की खाड़ी का ये विहंगम दृश्य, नीला समंदर, लेकिन जितना विहंगम दृश्य उतना ही चुनौतीपूर्ण। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस दिल्ली, पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन किया हुआ
भारत में निर्मित पहला डिस्ट्रॉयर पोत था। और पेनेट नंबर डेल्टा 61 आईएनएस दिल्ली अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। आईएनएस दिल्ली के कमान अधिकारी हैं कैप्टन गौरव मेहता और आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वज पोत है ये। और हम जानते हैं नौसेना के कई कमान हैं जिसमें पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान और अंडमान निकोबार कमान। और आईएनएस दिल्ली आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमान का ध्वज पोत है। राष्ट्रपति महोदय ने सलामी का स्वीकार किया, जवाब दिया और 3 जय के साथ राष्ट्रपति महोदय का स्मार्ट सैल्यूट। आईएनएस दिल्ली। INS Delhi with pennant number Delta 61. The ship that was the first destroyer to be entirely designed from scratch and built in India. Another made in India vessel. INS Delhi has recently undergone a major weapon and sensor upgradation, which adds more teeth to her overall combat capabilities or combat potential. Our cameras are also installed on INS Delhi. INS Delhi is commanded by Captain Gaurav Mehta. And today, he's the flagship of the Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Lieutenant General Ajay Singh, Ati Vishisht Seva Medal. INS Delhi on your screens. INS. First column had the 22 ships anchored at sea in static display. Second column, we have seen another 11 ships at static display reviewed by the President. And in the third column, now we are witnessing the last 11 ships anchored for the President's review. Indian tricolor fluttering high, leading from the front. Presidential yacht INS Sumitra on your screens. पूरी तरीके से मुस्तैद और सुसज्जित पोत, जिसकी श्रृंखला में प्रेसिडेंट यॉट के सामने से आईएनएस शिवालिक, पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47, परियोजना 17 का हिस्सा है ये। स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला पोत और मझगांव डॉक्स लिमिटेड में निर्मित स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का नाम, इन पोतों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आईएनएस शिवालिक की कमान अधिकारी हैं कैप्टन सौरभ ठाकुर और आज ये वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का फ्लैगशिप है। आईएनएस शिवालिक, और खास बात आईएनएस शिवालिक की यह है कि न सिर्फ ये मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है, बल्कि इसकी स्टील्थ क्षमता है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। खास बात यह है, स्टील्थ ऐसी तकनीक होती है जो दुश्मन के रडार से, दुश्मन की नजरों से बचते हुए दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंचता है और दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। और आईएनएस शिवालिक पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 47 परियोजना 17 परियोजना 17 के तहत बनाया गया है। और भारत अब उन देशों में शुमार है जो अपनी नौसेनाओं में जंगी जहाजों का खुद डिजाइन तैयार कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। और अब हम उस स्तर पर भी पहुंच रहे हैं जहां हमारी नौसेना लगातार सेंसर्स जो अलग अलग हैं उसका भी निर्माण कर रही है। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस सतपुरा पेनेट संख्या फॉक्सट्रॉट 48, ये पोत 3 आयामों में खतरों से निपटने में सक्षम, यानी हवा, सतह और उपसतह और नवीनतम हथियारों, सेंसरों और लड़ाकू प्रबंधन प्रणालियों से सुसज्जित आईएनएस सतपुरा के कमान अधिकारी कैप्टन साकेत खन्ना और ये वाइस एडमिरल मार्कंड ओमिथुल्लो अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, दक्षिण नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ध्वज पोत है। On your screens right now, INS Sumitra, the presidential yacht, commanded by Commander Ashish Mittal, INS Sumeda, commanded by Commander Sumit Malik, and INS Savitri by Commander N. Robbie Singh. And a while back, we also saw the second of the 3 Sleeth frigates
INS Satpura with pennant number Foxtrot 48. The mighty prowess of India's maritime strategic significance on display for the world to watch. This, of course, is an integral part of India's growth story globally. The ships are capable of handling threats in all three dimensions, and especially talking about INS Satpura. 3 dimensions meaning air, surface and subsurface, and they're also fitted with latest weaponry, latest sensors and combat management systems. INS Satpura, viewers, is commanded by Captain Saket Khanna, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command, Vice Admiral Markrand Hampioli, Ati Vishisht Seva Medal, Now Sena Medal. 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, जिसका आयोजन हो रहा है नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय शहर विशाखापट्टनम में। प्रेसिडेंट यॉट अब आईएनएस सह्याद्री के सामने से गुजरता हुआ पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 49 भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री पोतों के रडार और थर्मल सिग्नेचर्स को कम करके दुश्मन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए बनाया गया है, और इसके सफल डिजाइन के कारण भारतीय नौसेना द्वारा इसी श्रेणी में 7 और पोतों को भी बनाया गया है। आईएनएस सह्याद्री के कमान अधिकारी हैं कमांडर मंजीत मोजेस थॉमस, और आज ये रियर एडमिरल संजय भल्ला नौसेना मेडल ध्वज अधिकारी पूर्वी बेड़े का ध्वज पोत है। Pennant number Foxtrot 49, INS Sahyadri, designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar and thermal signatures. Some spectacular visuals brought to you live and exclusive from the Bay of Bengal. DD cameras manned by helicopters. And as we stay with the INS Sahyadri, INS Sahyadri is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas, and today is also the flagship of the Flag Officer Commanding Eastern Fleet, Rear Admiral Sanjay Bhalla, Now Sena Medal. और मनभावन दृश्य, और इन मनभावन दृश्यों के पीछे उन चुनौतियों को भी रेखांकित करना बेहद महत्वपूर्ण सकल। एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं वो प्रेसिडेंट यॉट के सामने आते जा रहे हैं, और देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद स्मार्ट सैल्यूट का जवाब देते हुए पूरी उत्कंठा के साथ अवलोकन करते हुए देश के नौसेना की सामरिक शक्ति का, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय जहाजरानी निगम और इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं उनके पोत भी शामिल, उनके जहाज भी शामिल, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सागर अन्वेषिका भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है। और समुद्र की ये बलखाती लहरें जिन पर विचरण करते नजर आ रहे हैं, देश के पहरेदार के रूप में मौजूद बंगाल की खाड़ी में ये पोत, वो आज के इस 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बन रहे हैं। और अब प्रेसिडेंट यॉट सामने से गुजर रहा है आईएनएस तेग के। आईएनएस तेग जो कि पेनेट नंबर फॉक्सट्रॉट 45 तलवार श्रेणी स्टेल्थ फ्रिगेट का पहला पोत है। कई प्रकार के हथियारों और सेंसर्स के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम फ्रिगेट एकीकृत कामवो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर या कामोव 28 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को भी ले जा सकता है। भारतीय नौसेना पोत तेग के कमान अधिकारी हैं कैप्टन सुमित सिंह सोधी वीएसएम, और आज ये रियर एडमिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी बेड़े का ध्वजपोत है। Pennant number Foxtrot 45 is INS Teg. This is the first of the follow on Talwar class Sleeth frigates. And viewers, it is capable of countering threats in all the dimensions with a multitude of weaponry and sensors. And this frigate can carry an integral Kamau 31 air early warning helicopter,
INS Tegh is commanded by Captain Sumeet Singh Sodhi, VSM, and today is the flagship of the Flag Officer Commanding Western Fleet, Rear Admiral Sameer Saxena, नौसेना मेडल। वाइस नौसेना को 3 आयामी या कहें त्रि-आयामी सेना के अंग के तौर पे जाना जाता है और इसका मतलब अगर साधारण शब्दों में समझें तो नौसेना एक ऐसे सैन्य बल है जो न सिर्फ समंदर की सतह पर अपने ऑपरेशंस, अपनी क्षमताओं को अंजाम देती है, बल्कि समंदर के अंदर पनडुब्बियों के माध्यम से और तमाम दूसरे उपकरणों के जरिए भी दुश्मन पर निगाह रखती है, दुश्मन पे हमला करने की क्षमता रखती है। नौसेना का तीसरा आयाम समंदर के ऊपर फैला वो आसमान है जहां वो अपने लड़ाकू जहाजों के जरिए, टोही विमानों के जरिए और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आईएनएस राणा, पेनेट नंबर डेल्टा 52, ये एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस राणा भारतीय नौसेना का सबसे पुराने सर्विस डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। आईएनएस राणा के कमानाधिकारी कैप्टन कोदलपुरम श्रीवत्स हैं। आईएनएस राणा एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसका मतलब कि ये विध्वंसक के तौर पे इसे विध्वंसक की श्रेणी में है, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम निर्देशित मिसाइल, गाइडेड मिसाइल से लैस, यानी दुश्मन को पलक झपकाने का मौका दिए बगैर दुश्मन को नस्ते नाबूद करने की क्षमता रखता है और आईएनएस राणा सबसे पुराने सर्विंग डिस्ट्रॉयर पोतों में से एक। Pennant number Delta 52 is INS Rana, guided missile destroyer. INS Rana is the oldest serving destroyer of the Indian Navy, commanded by Captain Kodalpuram Srivatsa. And I would like to get in Captain Shyam Kumar here in our discussion, especially the tradition, Captain Kumar, that goes in naming of our naval assets, our ships. Very true, Sakal. Naming of ships have been a old tradition. You have today witnessed Kesari, Ghadial, and then you have witnessed Jyoti. You have the tankers like Aditya, Shakti. These are all support ships or force multiplier for the logistic support, fueling of the ships. Similarly, Rana, Ranjit, Rajput, Ranvijay, Ranveer, thematic names of the warships. Mountain ranges such as you saw today, Satpura, Sayadri, Shivalik, and earlier we had Dunagiri, Himgiri, Nilgiri, Udaygiri. These are the warships. Kamurta, Kachal, and island names. The Navy has been giving names to the warships regarding traditions, customs, and the places of interest. Visakhapatnam, Delhi, Chennai, such names actually give regards to and recognize the major port cities or the different cities of the country. So the Navy has the tradition of naming ships on such various names, themes, locations and islands. तो भारतीय नौसेना द्वारा अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं या जो पोत हैं, उनको उनके नामकरण की जो गौरवशाली परंपरा है और उसमें जो चीजें समाहित हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी कैप्टन श्याम कुमार। और आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में जहाज एक के बाद एक प्रेसिडेंट जॉर्ज जिनके सामने से गुजर रहा है, उनमें से कुछ जहाजों पर दूरदर्शन ने खास तौर पर कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि न केवल प्रेसिडेंट यॉट से बल्कि उन जहाजों से भी आप तक दृश्य पहुंच सकें। अगली पंक्ति का अंतिम पोत भारतीय नौसेना पोत जलाश्व है। पेनेट नंबर लीमा 41 के साथ आगे बढ़ता हुआ जलाश्व एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिस पर UH-3H हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग समुद्री संचालन के लिए किया जाता है। और खास बात, कोविड महामारी के दौरान ये जहाज राहत और बचाव कार्यों में प्रशंसनीय भूमिका के लिए सराहा गया है। भारतीय नौसेना पोत जलाश्व के कमान अधिकारी हैं कैप्टन PSS उदय किरण। मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र सेतु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। INS Jalashwa, commanded by Captain PSS Uday Kiran. This is, viewers,
on your screen, the last ship of the fourth column, INS Jalashwa, Bennett number Lima 41, is a landing platform dock. INS Jalashwa houses integral seeking UH-3H helicopters, which are utilized for maritime operations, and the ship has played, it is very significant to mention here, a stellar role, an outstanding role in rendering humanitarian assistance and medical relief during COVID-19 pandemic across the country, as also part of the mission Sagar and Operation Samudra Setu, which went beyond our national boundaries. INS Jalashwa on your screens, commanded by Captain PSS Uday Kiran. INS जलाश्व के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं उस रोमांच से भरे प्रदर्शन का जो हॉक विमानों के जरिए आपके सामने होगा। फिलहाल आपके सामने ये प्रेसिडेंट यॉट का ये खूबसूरत दृश्य, प्रेसिडेंट यॉट यानी INS सुमित्रा और INS सुमेधा आज और INS सावित्री आज प्रेसिडेंट के जहाजों की पंक्ति का कॉलम का हिस्सा। और ये तो तस्वीरें हैं INS जलाश्व से आप तक पहुंच रही हैं, जहां विशेष तौर पर दूरदर्शन ने कैमरों की तैनाती की है और राष्ट्रपति महोदय को 3 जय की सलामी। बेहद खास मौका उन नौसैनिकों के लिए भी जिन्हें इस पूरी कवायद में हिस्सा लेने का मौका मिला, फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बनने का मौका मिला। बेहद गौरवमय क्षण। राष्ट्रपति महोदय, सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर आज स्वयं यहां उपस्थित बंगाल की खाड़ी में, और यह मौका पूरे अगर नौसैनिक इतिहास में देखें तो सिर्फ 12वां मौका, और विशाखापट्टनम में इस बंगाल की खाड़ी के तट पर 3रा मौका। पिछली बार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में वो मौका मिला था जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिस्सा बने थे। और अब हॉक डेमो, ये तस्वीरें आप तक पहुंचते हुए 2 हॉक्स विमान आपके सामने होंगे वाइपर फॉर्मेशन में। Now let's start gazing ahead towards the sky, where as we speak you will see at least 3 Pocket 1 Singh jet trainer aircraft in an arrowhead formation performing the maneuvers like bombers, and they're flying at knots of airspeed over the presidential yachts. Spectacular visuals from DD cameras live on your screens. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron. These Hawks belong to Indian Naval Air Squadron, around 551, the East Coast fighters, also known as Phantoms. फिलहाल ये तस्वीरें Now we will witness a third hawk performing a flyby, thereby breaking right and rejoining the hawk formation. Ladies and gentlemen, the hawk to your left. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. A big round of applause. Indian Navy, ladies and gentlemen,
is one of the few navies in the world to have a dedicated aviation arm. The exponential growth of the fleet arm from 10 amphibian aircraft in 1953 into a modern, potent force is testimony to the Navy's aspirations and resolve in developing this arm. The Indian naval aviation is set to propel itself into the major league of tomorrow's navies and operate in sync with the envisaged growth of the Navy and the challenges it must face in the future. Ladies and gentlemen, look ahead at those dots. We shall now witness the naval air prowess as we commence with the fly past, which shall be led by Flag Officer, Naval Aviation Rear Admiral Philippos G. Painamutil, Ativishi Seva Medal, Nausena Medal, and the helicopter is co-piloted by Commander Pranay Kumar Pandey, Flight Commander of 321 Flight. Focus your eyes right ahead as those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water, see the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating their fly past. You would notice the Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute to the Supreme Commander. The Chetak. Coming up next are 6 Chetak helicopters from the 321 flight in a diamond formation. The squadron specializes search and rescue missions, commanded by Commander Amar Deepak Bulusu. अभी आपके सामने आने वाले हैं गार्जियंस अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर। यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर एक भारतीय रचना पर आधारित एवं भारत में निर्मित है। देवियों और सज्जनों, देखिए 3 ध्रुव एरोहेड फॉर्मेशन में कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में आपके बाईं ओर Now coming up in arrowhead formation, Mark III helicopters, the Lancers led by Commander SS Dash. अब आ रहे हैं सीकिंग यूएच सारस। ये 3 सारस एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरदीप सिंह, कमान अधिकारी 350 स्क्वाड्रन के नेतृत्व में संचालित हैं। Ladies and gentlemen, the twin-engine Sea-King 42 4 such helicopters in a diamond formation, often called the flying frigates, coming up now led by Commander SUMEET Kumar Gupta, Commanding Officer 330 Squadron. Sea-King helicopters of the Indian Navy. अब आ रहे हैं कमाओ 2831 ईगल हेलीकॉप्टर्स। ये 3 ईगल्स एरोहेड फॉर्मेशन में कमांडर हरिचरण के नेतृत्व में आपके बाईं तरफ दिखाई देंगे।
In diamond formation are the Dorniers. Ladies and gentlemen, Dorniers in diamond formation led by Captain P. Ratish, commanding officer of the 311 Squadron. Ladies and gentlemen, coming up next are the 3 Iron Dorniers of the 550 Squadron from INS Garuda in an arrowhead formation. INS Garuda is the premier training establishment for naval aviators undergoing conversion for maritime reconnaissance operations. The formation is commanded by Captain ARJUN MENON. अब हैं भारतीय नौसेना के डॉर्नियर सी ईगल्स। अभी आप 2 सी ईगल्स को जो 313 स्क्वाड्रन से जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर कुणाल डे, आपकी बाईं ओर देखेंगे। अब आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर्स रक्षक, और आज यह 4 रक्षक डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जिसके कमान है कमांडेंट जयंत नारायण थोराट के हाथों में। Is the maritime patrol aircraft equipped with multiple sensors and weapons. The I-38C 315 squadron, the wing stallions commanded बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम शहर जिसकी मेजबानी कर रहा है, और अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है ये फ्लीट रिव्यू। हेलीकॉप्टर से ये विशेष दृश्य, विहंगम दृश्य बंगाल की खाड़ी के आप तक पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक जो पोत हैं, प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरता हुआ, और हमने शुरुआत में देखा एक के बाद एक जो जंगी जहाज हैं जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं, उनका आगमन होता रहा, और डेक पर मौजूद जो कैडेट्स हैं उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को स्मार्ट सैल्यूट पेश किया। और समय फ्लाई पास्ट में फॉर्मेशन अल्बाट्रॉस वायु विचरण करते हुए ये उन्नत विमान जो कि हमारे देश की नौसेना की जो वायु शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट यॉट है आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस सुमेधा उसके ठीक पीछे, और उसके पीछे आईएनएस सावित्री, वहां पर न केवल माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित हैं, साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी मौजूद इस
फ्लाई पास्ट का अवलोकन करते हुए, वायु विचरण करते हुए फॉर्मेशन फैंटम। अब हैं ब्लैक पैंथर्स मिग 29, 6 मिग डायमंड फॉर्मेशन में कैप्टन शिवांकर सिंह सांब्याल के संचालन में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। Ladies and gentlemen, we now approach the mobile submarine column. देवियों सज्जनों, अब हम पनडुब्बी श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। बारहवां फ्लीट रिव्यू अपने उरूज पर। और हम गवाह बने उस रोमांचक दृश्यों के। और अब रोमांच का एक और दौर। आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल कमीशन किया हुआ नवीनतम पनडुब्बियों में से एक स्कॉर्पियन क्लास का ये पनडुब्बी आईएनएस वेला। और आईएनएस वेला भारतीय नौसेना की नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीनों की श्रृंखला में है। समुद्री गोताखोरी की विशेषता रखते हुए इस पनडुब्बी की गिनती समूचे विश्व में होती है। खास बात यह है कि इसकी स्टील्थ क्षमता, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते, इस तरह की तमाम तरह के डिजाइन इसमें शामिल हैं, तमाम तरह की खूबियां इसमें शामिल हैं। आईएनएस वेला का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश मैथ्यू। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, फ्रेंच डिजाइन, लेकिन इसका निर्माण मुंबई के मशगांव डॉकयार्ड में किया गया है। कलवरी श्रेणी की सबसे पहली पनडुब्बी साल 2017 में इंडक्ट की गई थी, आईएनएस कलवरी। और खास बात यह है कि आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना के सबमरीन आर्म्स की पहली पनडुब्बी थी, जो साल 1967 में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी थी। On your screens, mobile submarine column. The first submarine in the mobile column is INS Vela. We saw that a while back. Right now you can see presidential yacht INS Sumitra. INS Vela is a recently inducted and made in India Calvary class submarine. And as we're getting you these live visuals of the 12th President's Fleet Review, fleet reviews have been traditionally held on the western seaboard of India, but IFR 2016, that was the last edition, was a massive show of strength, and this is only getting bigger from there. Fleet reviews, this edition is witnessing the participation by ships, submarines, aircrafts, to emphasize actually, OP, the three-dimensional nature of Indian Navy, Indian Coast Guard, and we must also tell our viewers the government research vessels and Indian-owned or flagged merchant ships are also on display, paying respects to the Supreme Commander of Armed Forces, the Honorable President of India. In fact, independent India witnessed its first fleet review, and since then the ceremonial event has only grown in stature and moved from strength to strength.
Special Operations Unit on the eastern seaboard, which is the designated airborne hub of the Indian Navy. The unit is mandated to conduct special operations utilizing airborne insertion techniques over land and in water in a precise manner. In this particular evolution, a prahar is being inserted over a designated drop zone with the required combat equipment and would then swim to the target beach and subsequently over the hinterland to conduct operations. In today's jump, we will witness 6 Marine Commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh jumping out of the Indian Navy's integral Paradonia from a height of 6,000 feet. The Marine Commando shall land in close proximity to this presidential yacht in a sequential manner, displaying the immaculate skill required to carry out precise landings. The 6 commandos led by Lieutenant Commander Shakti Singh are Davinder, POCD, followed by Amresh, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar, Anup Singh, POCD, and finally Puran Singh, POCD. And there we see our first jumper has landed in water and the second one is about to follow. There we see POCD Amresh landing in water. And a third para jumper, Lieutenant Commander Mrityunjay Kumar. Followed very closely by Anup Singh, POCD. And finally, Puran Singh, POCD. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, we are now proceeding towards the mobile column, which will comprise 4 waterjet fast attack craft. Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of the Government of India to commemorate 75 glorious years of progressive India and its rich history, diverse population, magnificent culture, and great achievements was set in motion on the 12th of March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on the 15th of August 2023. Swarnim Vijay Varsh is another initiative of the Government of India to commemorate the 50th anniversary of India's victory in the 1971 war. The Swarnim Vijay Varsh celebrations began by the lighting of the victory flame on the 16th of December 2020. The victory flame was lit from the eternal flame of the National War Memorial, signifying the bravery of the soldiers of the war. Since then, the victory flame has travelled across the length and breadth of India, and a large number of commemorative events were conducted during the journey. आजादी का अमृत महोत्सव
भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इनके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास मनाने के लिए है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील सभी चीजों का एक अवतार है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद समाप्त होगी। Ladies and gentlemen, this is a precautionary announcement for all of you. Because of the very heavy winds, you are requested not to go towards the edge of the ship. रोमांच के ये क्षण निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में रक्त के प्रवाह को उसने बढ़ा दिया होगा और हमारे नौसैन्य शक्ति को निश्चित तौर पर उस पर भरोसा और बढ़ गया। और शायद इसीलिए ये कहना होगा, नौसैनिक तुझे नमन, ओ सागर के शूर शुभ्रताधारी प्रहरी, तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। आदित्य सिंधु का भरता तुझ में धीर, अदम्य उम्मीद किरण, सागर की वो अडिग शिलाएं कंपित होती तेरी हुंकारों से। सुनाती पवन वीर गाथा तेरी, सुरभित तुझ में ही वतन चमन। वीर सैनिक तुझे नमन, हे नौसैनिक तुझे नमन। To be secure on land, we must be supreme at sea. Quoting one of the former prime ministers, and Indian Navy, Indian Coast Guard, our entire maritime strength continues to not only live this quote, but also the fleet review that you see on your screen, the 12th edition of the President's Fleet Review. It's worth mentioning here, OP and Shivendra, this symbolizes their loyalty, their allegiance to the nation, protecting the sovereign boundaries of the nation, sovereign waters of the nation, and also to strengthen bonds between the sailors and the state. Post-independence, the newly formed Indian Navy undertook several major changes. The changes were seen both in structure and also on operational front. It also reinstituted the maritime tradition of reviewing the composite fleet by the Supreme Commander of the Armed Forces. And once again, to recall, as we see the Indian tricolor fluttering high, leading from the front from INS Sumitra. And now let's shift our focus to some more vessels on your screen as you watch the live and uninterrupted broadcast of 12th President's Fleet Review. So, just to tell our viewers, the fleet reviews in India have been traditionally held in the Western Seaboard, but post-2016 it changed. 2016 was a massive show of strength on the East Coast, and now this being the 12th edition, only growing. इस पंक्ति में अब है भारतीय नौसेना पोत बत्तीमाल, पेनेंट नंबर टैंगो 67 के कमान अधिकारी हैं कमांडर संतोष कुमार ठाकुर।
The third ship in the mobile column coming ahead is INS Bangaram with pennant number Tango 65, commanded by Commander Guru Prasad Patil. चौथा पोत पेनेंट नंबर टैंगो 68 भारतीय नौसेना पोत बराटांग है। भारतीय नौसेना पोत बराटांग के कमान अधिकारी हैं कमांडर अनूप सिंह रावत। बारहवां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर, जिसके तहत अब से कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कि 4 जो पोत थे वो प्रेसिडेंट यॉट उनके सामने से गुजरा, और चौथा जो जलियान आईएनएस बारातंग था जिसके कमान अधिकारी थे कमांडर अनूप सिंह रावत। और ये हल्के सशस्त्र जलियान भारत की तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी ने कहा है तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यही भावना आज सभी नौसैनिकों के मन में परिलक्षित हो रही है इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान, जब उन्होंने देश की सर्वोच्च सेनाओं के सशस्त्र कमांडर, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को स्मार्ट सैल्यूट किया, 3 जय के साथ उनका अभिवादन किया। प्रथम पंक्ति में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उपस्थित। राष्ट्रपति महोदय जो कि जिनके कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार ये सुअवसर आता है, स्वर्णिम मौका आता है जबकि प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन होता है, और हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में ये परंपरा आज बड़े गौरव, गर्व और बड़े आकर्षक तरीके से निभाई जा रही है विशाखापट्टनम में, जो कि नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहें तो ये आजादी का अमृत काल है, और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल, जहां उम्मीद यही है, संकल्प और सिद्धि का पूरा सफर यही है कि हम कुछ नया लिखें, हम एक नया इतिहास, नया भविष्य लिखें। नौसेना अपनी पूरी गरिमामय इतिहास के बाद नया इतिहास लिखने को तत्पर दिखती है। नौसेना जिसने आज यह हमारे सामने रखा कि जितना गौरवमय इतिहास और वर्तमान हमारी सैन्य बलों का है, भविष्य उतना ही गौरवमय होगा। और इसी भरोसे को एक बार फिर से आज इस फ्लीट रिव्यू के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। मुझे याद आता है 75 वर्षों का नौसेना का वो गौरवमय इतिहास जो हमें उत्साहित करता है। नौसेना का वो गौरव